In the previous lectures of computer graphy, we discussed about the scan conversion and the various discuss about the various line drawing algorithm. The first one is the simple direct line, and the second one is the DDA. DDA algorithm we already done the discussion about the introduction about DDA and the algorithm, and now this is the example of the DDA algorithm for solving the intermediate point by using the DDA scan conversion method. So the 2 points are to be given. The starting points are 2 comma 2 and ending points are 7 comma 6. Question में given हो गए 2 points. First points are the starting point and second are the ending point. And we have to solve all the intermediate point by using the DDA scan conversion method. So starting with the first, here are the x1 and y1 2 comma 2, x2 and y2 that is 7 comma 6, that are also known as the x starting point and y starting point and x ending point and y ending point. So the very first step, like in the algorithm we have done, we have to calculate dx. Dx is the distance value that can be calculated by x2 minus x1 modulus. So x2 की वैल्यू क्या है 7 and x1 की वैल्यू क्या है 2. That is x2 minus x1 becomes 7 minus 2. 7 minus 2 becomes 5. So dx की वैल्यू फर्स्ट स्टेप की वैल्यू क्या आ गई 5. सेकेंड कैलकुलेट क्या करना है dy, डिस्टेंस फैक्टर ऑफ dy y. सो y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू क्या है 6 एंड y1 की वैल्यू क्या है 2. 6 माइनस 2 बिकम्स 4. सो dy की वैल्यू क्या आ गई 4. सो अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम द थर्ड स्टेप इज we have to check if dx is greater than dy. 5 is greater than 4, true. then क्या हो जाए लेंथ क्या हो जाए dx के इक्वल हो जाए अगर dx ग्रेटर है. अगर dy ग्रेटर होता तो लेंथ क्या बन जानी थी dy की जो वैल्यू होती. अगर यहाँ पर dx की 3 होती dy की 4 होती तो dy लेंथ क्या हो जाती 4. बट नाउ value of dx is greater than dy, then the length becomes dx के इक्वल आ जाएगी that is 5. so the fourth step is starting intermediate points क्या है x1 equals to starting point is 2, y1 equals to 2. so values are assigned and I की value क्या I is a variable whose value is starting from 0, that is incremented when we calculating the intermediate point. so in the algorithm, in the discussion of DDA algorithm, we also check the three condition, either the slope is less than equal to 1 or greater than 1 or equal to 1 slope of the line. So in that case, we can also check these also by that. So if according to that condition, we have to first calculate the value of m, that is the slope of the line, dy divided by dx, that is 4 divided by 5. dy की वैल्यू क्या है 4, dx की 5. 4 divided by 5 that becomes 0.8. so m की वैल्यू क्या है 0.8, which means that m is less than 1. तो m इज़ लेस देन 1, m लेस देन 1 जब होगा देन जो कंडीशंस हमने दो x एंड y कोऑर्डिनेट के लिए थी वो भी डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. दोनों के आंसर सेम आएंगे, इसलिए यहाँ पर साइड पे मैंने ये भी कंसेप्ट लिखा हुआ है. सो by continuing the algorithm that we already discussed in the last lecture, so यहाँ पर क्या है फोर्थ स्टेप पे वो पहुँच गए हम x स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट एंड i इक्वल्स टू 0. एंड देन द फिफ्थ स्टेप इज वी हैव टू कैलकुलेट द डेल्टा x. नेक्स्ट स्टेप में क्या है डेल्टा x कैलकुलेट करते थे, डेट इज x2 माइनस x1. इन द प्रीवियस lecture we discuss about the algorithm. Then the fifth step is to calculate the delta x, that is x2 minus x1 divide by length जो कैलकुलेट की है एंड y की वैल्यू. सेम स्टेप है dx कैलकुलेट कर चुके हैं हम, dy कैलकुलेट कर लिया, कंडीशन चेक की dx इज ग्रेटर देन इक्वल टू dy. लेंथ अगर dx ग्रेटर है तो लेंथ बिकम्स dx. यहाँ पर हमारी लेंथ dx के इक्वल आई, dx ग्रेटर था यहाँ पर 5 थी वैल्यू.
देन नेक्स्ट स्टेप इज x1 इक्वल्स टू x1 स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट एंड x एंड y के वो इक्वल कर दो एंड i इक्वल्स टू 0 कर दो, यहाँ तक हो गया एग्जाम्पल में भी। देन डेल्टा x कैलकुलेट, यहाँ पर ये x2 माइनस x1 डिवाइड बाई लेंथ एंड डेल्टा y कैलकुलेट किया y2 माइनस y1 डिवाइड बाई लेंथ। सो इन द सेम यहाँ पर क्या किया हमने, x2 माइनस x1 वैल्यूज आर 7 माइनस 2 डिवाइड बाई लेंथ, अब क्या है 5। 5 कैसे आई, dx, क्योंकि dx क्या है ग्रेटर, तो लेंथ बिकम्स 5। सम ऑफ द बुक्स में स्टेप लिखा हुआ है, लेंथ की जगह पे स्टेप है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पर क्या है, लेंथ डिवाइड करके यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई 7 माइनस 2 डिवाइड बाई 5, 5 डिवाइड बाई 5 बिकम्स डेल्टा x इक्वल्स टू 1। सो डेल्टा y की वैल्यू क्या आ गई 6 माइनस 2 डिवाइड बाई 5, डेल्टा y इक्वल्स टू 4 बाई 5, डेल्टा y इक्वल्स टू 0.8। वन कंडीशन नाउ नोटेड दैट कि डेल्टा x एंड डेल्टा y की वैल्यू आ गई, डेल्टा y की वैल्यू किसके इक्वल आई 0.8, दैट इज m, क्लियर। एंड डेल्टा x की वैल्यू क्या आई 1। दिस इज अ कंडीशन फॉर m is when m is less than 1. We can also check that condition. When m is less than 1 then x के नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स के प्लस 1, यहाँ पर 1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर डेल्टा x जो हम आगे लिख रहे हैं। देन 1 कैलकुलेट हो गई, दैट इज़ ऑलवेज 1। सो अगर लेस देन 1 है, अगर ग्रेटर देन 1 है तो y के केस में डेल्टा y की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पर डेल्टा y की वैल्यू 1 है। सो इन डैट के लेस देन 1 है, x इंक्रीमेंट इज एक्स के प्लस 1 एंड y इज वाई के प्लस m, m is the slope of the line. So in that case also the sixth step is we have to check I is less than equal to length. While I is less than equal to length, we have to calculate the next coordinate value by x plus delta x and y plus delta y. So the next point is स्टार्टिंग में क्या है, आई क्या है 0, इनिशियली आई 0 है, इंक्रीमेंट तो हुआ ही नहीं अभी, तो आई की वैल्यू अब इनिशियलाइज क्या की थी 0, तो 0 इज़ लेस देन इक्वल टू लेंथ क्या है 5, तो 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू। यहाँ पर क्या हो गया, नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट x1 ऑलरेडी पता है, डेट इज़ 2,2 x एंड y, तो x2 इक्वल्स टू एक्स आई प्लस 1 नेक्स्ट वैल्यू प्लस डेल्टा x, क्लियर। m लेस देन 1 में भी वही कंडीशन थी कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर डेल्टा x की वैल्यू अब क्या है 1, डेल्टा x की वैल्यू क्या होगी 1 एंड एक्स आई प्लस 1, आई की वैल्यू क्या थी 0 प्लस 1 बिकम्स 1, x1 हमारे पास क्या है 2, ऑलरेडी वी नो डैट द स्टार्टिंग पॉइंट 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3, देन x2 की वैल्यू अब क्या आ गई 3। सिमिलरली y2 की वैल्यू y1 प्लस डेल्टा y1 स्टार्टिंग पॉइंट 2 था प्लस डेल्टा y की वैल्यू 0.8, दैट इज़ 0.8, दैट बिकम्स 2.8, क्लियर। x2 एंड y2 की वैल्यू आ गई। इसके लिए हम एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है i स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इंक्रीमेंट करता जाएगा जैसे जैसे इंटरमीडिएट पॉइंट कैलकुलेट करते जाएंगे। x एंड y के स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, जब i इक्वल्स टू 0 है 2,2, नेक्स्ट एक्स आई प्लस डेल्टा x, नेक्स्ट इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ x and increment value of 5 that we already calculated. So DDA एल्गोरिथम में क्या है, नेक्स्ट जब कैलकुलेट करेंगे तो प्रीवियस रिजल्ट को यूज़ करना है, तो प्रीवियस रिजल्ट कौन सा हो गया, तो नेक्स्ट जो जब आई क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप क्या है, आई इंक्रीमेंट हो जाएगा by calculating the next intermediate point, I incremented by 1, I plus 1 incremented by 1 and then वी हैव नेक्स्ट जो x एंड y वैल्यू होंगी वो कौन सी होंगी, वो प्रीवियस रिजल्ट से आए हैं। x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 3, y की वैल्यू 2.8, सो नेक्स्ट क्या है होगा x3 हम कैलकुलेट करना है, x2 हो गया x2 y2, x3 इक्वल्स टू एक्स आई प्लस 1, आई की वैल्यू अब क्या है 1, आई की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी, x1 प्लस 1 प्लस डेल्टा x एंड x2 प्लस डेल्टा x की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू यहाँ पर क्या थी 3, जो हम यहाँ पर प्रीवियस रिजल्ट यूज़ करें हैं, तो 3 प्लस 1 बिकम्स 4। सिमिलरली y3 की वैल्यू
तो यहाँ पर वैल्यूज़ क्या आ गई, एक्स इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 4 एंड वाई की इंक्रीमेंट वैल्यू क्या आ गई 3.6. तो नेक्स्ट अगेन आई इज़ इंक्रीमेंटेड, चेक द कंडीशन, 2 is less than equal to 5, true, then previous result is to be stored and used for 3.6. next values are again calculated in the same method. So we have to calculate the values till the last end point is to be reached or I is less than equal to length. So by calculating the fourth value, the resultant incremented value is 7 and 6. So the ending points are 7, 6. So check the condition I is incremented. Then I जब increment होगा 5 बन गया, 5 is less than equal to 5. अब ending point क्या आ गया 7, 6. नेक्स्ट जो है कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास सारे के सारे इंटरमीडिएट पॉइंट्स कैलकुलेट हो चुके हैं. क्लियर. तो नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट यहाँ पर की हुई है. कैलकुलेट करके जो प्रीवियस वैल्यूज़ आई है वो उस टेबल में हमने यहाँ पर जाके स्टोर कर देंगे. क्लियर. तो यहाँ पर जो पॉइंट सारे कैलकुलेट हुए हैं वो कौन कौन से हैं, पॉइंट्स जो कैलकुलेट हुए हैं वो कौन से हैं. फर्स्ट इज़ 2,2, सेकेंड इज़ 3,2.8, थर्ड इज़ 4,3.6, 5,4.4, 6,5.2 and 7,6. So all these are the intermediate points. So we can plot all these points like this, and by calculating the intermediate point by using the DDA conversion method.